There requires transport of substances. इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना. 9th D बॉयज इधर स्क्रीन पे ध्यान. कि for example, the gases, the oxygen is transported from lungs to various cells of the body. The carbon dioxide is transported from different cells to the lungs. The food, it is transported from the gut, from the alimentary canal to different parts of the body. 9th C, boys, सीधे. Everybody here. सब सीधे देखो बोर्ड पे, स्क्रीन पे. The hormones, these are transported from endocrine glands to the again various target structures, target organs. There is transport of glucose from muscles, from liver to different parts of the body. There is transport of glucose from blood to the liver so that it can be changed into, glycogen. So there is continuous transport of substances from one part of the body to another part, and this is done by connective tissue. So ध्यान से इधर कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शंस है. कनेक्टिव टिश्यू का जब आपके दिमाग में कनेक्टिव टिश्यू आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, ट्रांसपोर्ट. सेकेंड, connective tissue also connects the skeletal framework. डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट एज सच भी कर रहा है so that connectivity organs अपनी अपनी जगह पर रहें. So skeletal tissue, it is also a type of connective tissue क्योंकि skeletal tissue different organs को अपनी अपनी जगह पर रखता है. Right? And there is one more connective tissue which surround various organs, which is present in between various organs, and that is connective tissue proper, या फिर हम कह सकते हैं areolar connective tissue. So connective tissue comes under 3 groups. कौन कौन से ग्रुप्स है? It is fluid, connective tissue, skeletal connective tissue, and then connective tissue proper. These are the 3 connective tissue. पहले हम तीनों के functions लिखते हैं. पहले सुनो फिर लिखना. Whenever I will say कि note down, then note down. Pens down on the table. Eyes, ears and brain coordinate these 3 organs. Eyes, ears और brain को coordinate करो और screen पर देखो. So fluid connective tissue. What are the functions of fluid connective tissue? It transport various substances. इसका काम ही ट्रांसपोर्ट करना है. Skeletal connective tissue forms the skeletal framework which protects various organs. Bones and cartilages. ठीक है. Then connective tissue proper protects various organs as it surrounds various organs and
It is also present between various parts. Different parts of body. ठीक है, एक ये पार्ट पड़ा है, एक ये पार्ट पड़ा है, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट? वन मोर थिंग, और फिर आप ये लिखना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, it has blood and lymph. Skeletal connective tissue, bones and cartilages. Connective tissue proper, ये मैं आपको यहां को लिख देती हूं ताकि आप areolar connective tissue, adipose connective tissue, और एक ये नाम लिख लो, आपकी बुक में दिया तो नहीं हुआ है, fibrous connective tissue. We will explain these two, but पता होना चाहिए कि तीन टाइप के होते हैं. It is areolar connective tissue, adipose connective tissue and fibrous connective tissue. Now note down. So fluid connective tissue, we come to blood. Blood has cells and plasma. जो प्लाज्मा है, this gives fluidity to blood. प्लाज्मा में क्या चीज है? That is water. ये तो 90% है. उसके बाद और क्या चीज है? That is proteins. और क्या चीज है प्लाज्मा में? That is glucose, sodium Na, then calcium, then small amount of potassium, then there are other ions हम कह सकते हैं. Then there is also present waste products like urea. It also has various hormones. और भी बहुत चीजें. This is the main composition, right? So 55% of the blood is formed of plasma. 45% is formed by cells. तो cells कौन से हैं? RBCs, WBCs, platelets. This is RBC. WBC has two types, granulocytes, agranulocytes. सिंपल, आप कहोगे भी क्या इतनी एक्सप्लेनेटरी दे रही है? सिंपल सी बात है, ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स है, एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है. न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स,
एसिडोफाइल्स पूरा लिखना है आपने, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, कर लो, नोट डाउन करो फिर फटाफट से। राइट डाउन दिस और लिख लेना, ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स द आरबीसी, सॉरी द डब्ल्यूबीसी हैविंग ग्रेन्यूल्स। ठीक है जी, डन बेटा, करें आगे, डायग्राम बनाए। क्या बेटा, क्या एक्सप्लेन करूं? एक मिनट आराम से, हाँ बोलो। 2 मिनट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही पता। 2 मिनट वेट प्लीज मैम, वी आर डूइंग। Okay, no problem. Do it quickly. कर लो आराम से कर लो। सारी मेरे पास स्क्रीन्स है ना, पीछे वाली भी है, अगर आपने पीछे वाला देखना हो तो मुझे वो भी बता देना। और बेटा किसी का फिर भी रह जाता है तो दिस इज रिकॉर्डेड, दिस इज अपलोडेड, राइट? यू कैन, यू नो, आप घर जाके के एडुकॉन ई लर्निंग यूट्यूब चैनल, उस पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, सो अभी रहता है। सो आरबीसीज, न्यूट्रोफाइल्स आप पूरा लिखना, बेसोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, मोनोसाइट्स, lymphocytes and platelets. RBCs, these are RBCs. ठीक है, then this is platelets, small fragments है ये। This is platelets. एक मिनट, then neutrophils, this is the nucleus of the neutrophils। आप देख रहे हो कितने लोब्स है, 3 to 5 लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफाइल्स,
थ्री लोब्ड न्यूक्लियस आप देख रहे हो। एसिडोफाइल्स, एस शेप्ड न्यूक्लियस, टू लोब्ड न्यूक्लियस। Kidney shaped nucleus in monocytes. This is lymphocytes. Round nucleus. ठीक है बेटा, दोबारा से आरबीसीज जो है, these are, you know, most abundant cells in our body. Smallest cells in our body. Enucleated. Enucleated, जिसको ई का नहीं पता वो लिख लेना ब्रैकेट्स में, विदाउट न्यूक्लियस। पता होगा सबको, बट फिर भी अगेन यू कैन नोट डाउन, इट इज विदाउट न्यूक्लियस, enucleated, right? So remember that lose their nucleus पहले होता ही है at maturity. Lose their nucleus at maturity. And ninth B, Vanshika. Vanshika is there, ninth B? वंशिका है कि नहीं? साहिबा, नाइन्थ बी साहिबा नहीं है, फिर मैं रोल नंबर वाइज बुलाऊंगी। यस, रोल नंबर 11, नाइन्थ बी, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12, नाइन्थ बी से किसी ने नहीं आना है, चलो तुम्हारी मर्जी है। चलो, वन स्टूडेंट हैज करेज टू कम। ओके, जल्दी से माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन करो, somebody help। हाँ जी बेटा, हाँ जी, say something। देखिए आपकी आवाज आ रही है? Yes, बेटा, why do RBCs lose their nucleus at maturity? ma'am, because they an enucleated cell. enucleated का तो मतलब है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं है। वो जब छोटे थे, तो छोटे मतलब जब वो बन रहे थे तो उनके पास न्यूक्लियस था, बट मेच्योरिटी, जब वो मेच्योर हो गए तो उनका न्यूक्लियस खत्म हो गया। कैन यू टेल व्हाई दे लूज देयर न्यूक्लियस? No, नो, बैठो बेटा, बैठिए बैठिए। एनीबडी? नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, नाइन्थ सी। सोच के देखो आरबीसी का क्या फंक्शन है, क्यों लूज किया या नहीं किया? रोल नंबर 4, स्विच ऑन द माइक बेटा, कोई हेल्प करो। हाँ जी, आप बताओ, पहले हेलो करो, हेलो। बस 9C की तो आवाज ही नहीं आ रही, तो कैसे काम चलेगा? मैम जरा इनका माइक चेक कीजिए प्लीज। तो आपको आ रही है पीछे? हाँ, आप मैम की आ रही है, यही बोलते ही बहुत धीरे है। हाँ जी, कैन यू टेल, डू यू नो व्हाई दे लूज देयर न्यूक्लियस? जोर से बोलना है। नहीं पता? बैठो फिर, बैठिए। चलिए एवरीबॉडी, बेटा आरबीसी का फंक्शन फ्रॉम क्लास 5th, यू नो, 5th वाले बच्चों को भी किसी टीचर ने पढ़ाया है कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत सारा होता है,
तो आरबीसी बेचारा क्या कहता है कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हीमोग्लोबिन भर लूं, है ना, इसलिए वो अपना न्यूक्लियर सारी ऑर्गेनेलिस को खत्म कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी थोड़ी सी कम हो जाएगी बट आई शुड कैरी मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। सो व्हाई डू दे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार डाल के, और अब भूलना नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि 10th क्लास के बच्चों को ये नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दे लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। लिखो जल्दी से, टू ट्रांसपोर्ट, अंडरलाइन करो, टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। जगह बनाएगा तभी तो हीमोग्लोबिन क्या ही करेगा, टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, कंट्रोलिंग सेंटर नहीं है, क्या करे, देयरफॉर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज only 120 days. Lifespan of RBCs only 120 days. And कहां पे बनते, कहां पे है, formed by bone marrow, लिवर एक्सेट्रा, कई जगह बनते हैं बट बोन मैरो और लिवर में ज्यादा बनते। Dead RBCs are disposed of by spleen. मर के कहा जाते हैं, स्प्लीन उसको डिस्पोज ऑफ करता है। That is why spleen is called as graveyard of RBC. Graveyard of RBC. Spleen is called as graveyard of RBCs. लिख लिया सबने, एवरीबडी डन? उसके बाद आ जाता है हमारा, सो आरबीसी का फंक्शन, बट इज इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। लिख लो फंक्शंस में, रेड कलर टू द ब्लड। एंड सेकेंड थिंग, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, दैट इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, it transports hemoglobin, I'm sorry, it transports, yeah, it has hemoglobin which transports oxygen. RBCs contain hemoglobin which transports oxygen. Second thing, very important, RBCs have antigens responsible for blood groups. हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। सो कौन डिसाइड करता है, द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। Antigens present on the RBCs decide the blood. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आई थिंक डन। नेक्स्ट इज WBCs. WBCs इन जनरल, WBCs का फंक्शन लिख लीजिए,
that is WBCs provide immunity to our body. आप देखते हैं जब हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लड टेस्ट करवाएं, सीबीसी करवाएं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, but you will see that there is increase in the number of WBCs. Why increase in WBCs? Because infection है तो उसको दूर करने के लिए जो हमारी मिलिट्री है उसका नंबर बढ़ जाएगा. तो जो WBCs है it forms the military. Right. So neutrophils, multi-lobed nucleus. Basophils, 2 to 3 lobed nucleus. Acidophils, 2 lobed or S-shaped nucleus. Monocytes, kidney-shaped nucleus. And lymphocytes, oval nucleus. इनके बारे में सिर्फ हमें ये करना है, न्यूक्लियस की टाइप्स क्या है, शेप्स क्या है, एंड ओवरऑल what are the function of WBCs? That is, they provide immunity to our body. They provide defense system to our body. Abnormal increase in WBCs. It is leukemia, blood cancer. Abnormal increase in WBCs is the indication of leukemia. और भी होता होगा बट हमारी तरफ से यही है. And then platelets. Platelets cells नहीं है, platelets fragments है. लिखो जरा. These are small fragments of. These are small fragments of megakaryocytes. इकट्ठा लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी. It is the small fragments of megakaryocytes. Platelets, इसलिए enucleated fragments कह सकते हो. Enucleated fragments of megakaryocytes. And you know platelets का function क्या है? That is, it helps in blood clotting at the injured sites. Helps in blood clotting at the injured sites. ये नहीं कि बाहर इंजरी हुई तभी, हमारे अंदर भी ब्लड वेसल्स में बहुत सारी इंजरी होती रहती है, उसको सील करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते. ठीक है. तो जल्दी से फंक्शंस कर ले हम इसके. डन. फंक्शंस ऑफ ब्लड ओवरऑल कर ले. आपने किया भी है, दैट इज transport of oxygen, transport of carbon dioxide, transport of urea, transport of blood, transport of digested food, transport of, that is, हम क्या कह देंगे, hormones,
ions, glucose, ठीक है, and various other. सिर्फ transport of oxygen is by RBCs. The rest all transported by plasma. Only RBCs are only oxygen is transported by RBCs. Rest all are transported by plasma. So another is, एक हमने किया था blood, another is lymph. Blood in the tissues, blood flow in capillaries, है ना? Arteries divide करती है arterioles और फिर tissues के अंदर छोटी छोटी capillaries, you all know. ठीक है, heart में से aorta निकला, aorta divides into arteries. Arteries divide into arterioles, and arterioles in the tissue divide into very narrow capillaries. In the tissue, right? So this is aorta, arteries, arterioles, and capillaries. Because capillaries are very narrow, its walls are very thin. So some of the blood leaks out from the capillaries into the tissue, and that is called as lymph, right? So लिख लो. What is lymph? Lymph is a part of blood. Lymph is a part of blood which leaks out from capillaries into the tissue. Lymph consists of some part of the plasma, and few WBCs. Lymph consists of some amount of blood plasma and few, हम अगर बात करें तो few lymphocytes. ध्यान से, no RBCs. Therefore, lymph is colorless. Lymph is colorless. No clotting. Clotting भी नहीं होती है क्योंकि platelets नहीं है. No clotting. बनता क्यों है? Why? So write down. Lymph के functions क्या है? It maintains fluid balance. It maintains fluid balance in the body. It contains
excessive fluid from the blood in tissues. टिश्यूज में ब्लड नहीं संभाल पा रहा उस फ्लूइड को. It contains excessive fluid from blood in tissues and later returns to the blood. बाद में जाके टिश्यू से बाहर जाके ये फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है. Second point, lymph absorbs fats in the intestine. अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस की है, लैक्टील्स किया होगा, बट अगेन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ये लिख लो, इट एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. मैम ये 9th क्लास है, लाइफ प्रोसेसेस 10th में है. अच्छा, आई एम सॉरी. ठीक है मैम. चलिए, मेरा मतलब इन जनरल आप लिख लो कि इट एब्जॉर्ब्स फैट्स in the small intestine. ठीक है, क्योंकि lymphocytes है तो it provides immunity also. White blood cells है ना, provide immunity also. तो बेटा अगर lymph नहीं बनेगा ना तो वो जो ब्लड में टिश्यूज में एक्सेसिव फ्लूइड था टिश्यू के अंदर, वो लूज हो जाएगा, किडनी के थ्रू वो बाहर चला जाएगा. इसलिए हम इतना फ्लूइड बाहर नहीं भेजना चाहते, इसलिए वो पहले लिम्फ में आता है और लिम्फ फिर ब्लड में जाकर मिल जाता है. इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट योर लिम्फ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जल्दी से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. आई थिंक अभी हमारे पास टाइम है. वी हैव 2 मिनट. जल्दी से. दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेजेस. Can you tell me, कोई बच्चा आए 9th F में, somebody come, जिसको पता है what is the difference between bones and cartilages? मैम किसी को भेजिए. मैम कहना है. Yes, tell. मैम bones are hard and cartilages are soft. हाँ, bones are hard, cartilages are soft. बिल्कुल ठीक है. पोजीशन बता दो मुझे cartilages की जरा. Ma'am, bones are present in arms. Cartilages are present like ears and Tip of the nose. Very ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है. तो पहली बात जो है लिख लो, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस. बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी. और कार्टिलेजेस में आप क्या लिखेंगे? कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू. बोन्स तो हार्डेस्ट टिश्यू है, नॉट इवन कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू. जबकि कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी. Second point, bones form the endoskeleton in our body. Bones form the endoskeleton in our body. सारा एंडोस्केलेटन हमारा बोन से बनाया है. जो कार्टिलेजेस है, दे आर प्रेजेंट इन द पिन्ना ऑफ ईयर, जो हमारे टीचर्स के लिए शायद बनाया गया है कि इनके कान खींचो. ठीक है, कान खींचने के लिए क्या है? पिन्ना है. और वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेजेस का बना हुआ है. देन टिप ऑफ द नोज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रा. वर्टिब्रा आपको पता है बैकबोन में प्रेजेंट है, उनके बीच में जो टिश्यू है जो ज्वाइन करेगा, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क. देन पार्ट ऑफ, नॉट ऑल, पार्ट ऑफ रिब्स, these are formed of cartilages. ठीक है, so this is
डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। कल हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर, टाइम इज ओवर। बस मैं छोड़ ही रही हूँ, मैं कल पे आ गई हूँ, तो इसका मतलब हम so tomorrow we will do the structure, the internal structure of bone and cartilages। उस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये करके आओ, समझ के आओ। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो बोलो। पहले डाउट है। हाँ बोलो। मैम जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं वेसिकल्स में, उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? किसका फंक्शन बेटा? हिस्टामिन जो वेसिकल्स रिलीज करते हैं, सॉरी जो वेसिकल जो हिस्टामिन रिलीज करता है। मैम बताएंगे जरा मुझे। मैम ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या रिलीज करते हैं? वेसिकल जो हिस्टामिन मैम जो हिस्टामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो वेसिकल करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? आप हिस्टामिन की बात कर रहे हैं? यस। हाँ, हिस्टामिन जो है ना बेटा, हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय, किससे, कौन रिलीज करता है? या तो कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में होते हैं मास्ट सेल्स या बेसोफाइल्स। ठीक है, कब रिलीज होता है? इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन क्या करता है? इट इज वासोडाइलेटर। वासो का क्या मतलब है? दैट इज ब्लड वेसल्स डायलेट कर देना, खुला कर देना। हिस्टामिन इज एन इंडिकेटर ऑफ एलर्जीज। ठीक है ना, तो जब वासोडाइलेशन, आपने देखा है कि जब क्या कहते हैं एलर्जीज हो जाती है तो कहीं पे स्वेलिंग्स हो जाती है, राइट? स्वेलिंग होती है ना, किस कारण है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, है ना, दैट इज ड्यू टू हिस्टामिन। और उस टाइम हम क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिन हम टेबलेट्स दे देते हैं, जो हमारी ये, हम क्या कह देते हैं, एल्ड्रिन कह देते हैं, एविल कह देते हैं, ये सब मास्ट सेल्स को इनहिबिट करती है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी हो जाए तो हम स्टेरॉइड्स दे देते हैं, है ना, विच कंप्लीटली इनहिबिट मास्ट सेल्स फॉर सम टाइम। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। ये पढ़ के आना बेटा, एंड आई विश हमें और ज्यादा क्वेश्चंस पूछने को मिले। मैं भी पूछूंगी और आप भी मुझसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।